ساتھ پروگرام کا بھی آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان نہیں تو اگلے رمضان اپنے گھر ہمیں بھی بلائے، آمین انشاءاللہ آمین۔ تعالیٰ۔ خواتین حضرات، نبیہہ فرط جذبات میں بتانا بھول گئی ہیں کہ ان کی میزبان نبیہہ اعجاز یہاں بیٹھی ہیں اور ان کا میرے خیال سے میزبان جن لوگوں کا ساتھ ابھی تک ہے، اگر ہم تعارف نہ بھی کروائیں تو وہ بہت اچھے سے اب نبیہہ وہ جانتے ہیں، مگر روزانہ نئے نئے لوگ ہماری بالکل۔ ٹرانسمیشن کو دیکھ کر ہمارے پرستاروں میں شامل ہو رہے ہیں، اپنے بارے میں خوشگمان رہیے۔ تو خواتین حضرات، جیسا میں نے بتایا کہ یہ میری ساتھی کو ہوسٹ ہیں جن کا نام نبیہہ اعجاز ہے اور میرا نام ڈاکٹر عمر عادل ہے، اور جو ابتدا ہوئی ہے مرحوب احمد حمدانی جو میرے بزرگ اور شفیق اور عزیز ہیں، اور خواتین حضرات کچھ تمغے ایسے ہیں کہ جو دنیا پہ ملتے ہیں، ان کو تمغے آسمانی بھی ملتے ہیں، مگر ہماری پاکستانی حکومت نے فن نعت گوئی میں ان کی اعلیٰ ترین کارکردگی کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی مرحمت فرمایا ہے، اور یقین کیجئے آپ سے زیادہ اسے کون ڈیزرو کرے گا۔ نبیہہ، جو میں بالکل سچ بات آپ کو بتانے لگا، اور خواتین حضرات آپ بھی میرے ساتھ ذرا متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک بات اور ایک کیفیت کو آپ کے ساتھ یقیناً شیئر کرنا ہے۔ حمدانی صاحب، میں گناہگار جب بھی اپنے بلاوے پہ گیا ہوں سعودی عرب، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ پہلے میں نے مدینے میں حاضری دی ہے۔ حمدانی صاحب، مدینے میں حاضری کے دوران جو وقت گزرتا ہے اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ شاید اب آنکھوں میں آنسو رہے نہیں ہیں، شاید اب کوئی کیفیت ایسی رہی نہیں ہے جو محسوس کی ہو۔ اس کے بعد سر وہاں تک کا سفر کہ مکے پہنچنا، آپ یقین کیجئے مکے پہنچ کے جو ہی آپ مطاف میں قدم کیا رکھیں گے، آپ مسجد الحرام میں قدم رکھیں گے اور طواف شروع کریں گے، آپ کو لگے گا کہ اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کی جو صحیح صداقت نظر آتی ہے وہ میرے مولا کے گھر میں نظر آتی ہے، خاص طور پہ جب طواف کرنا شروع کریں۔ بالکل، اور میری تو بڑی خواہش ہے اکثر کہ پوری دنیا گھومیں اور جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایکسپلور کریں، لیکن میں نے اور میرے شوہر نے اس بار یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، وہاں پر جائیں گے اور اس کے بعد کہیں اور جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے گے۔ آمین انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آنسو نکلنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جی بالکل میں سمجھ سکتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ جی بالکل جو آگے جدائی پڑی ہوئی ہے، رکاوٹیں ہیں، ختم ہو جائے گی۔ اور حمدانی صاحب، جو خواہش کرتے ہیں اللہ اس کو بھی پہنچا دیتا ہے۔ جیسے بچی کہہ رہی ہے وہ جانے کو سب کا دل چاہ رہا ہے، بے شک بے شک۔ وہ رکاوٹیں پڑی ہیں، تو اس لیے پھر وہاں پہنچ جاتے بندہ سوچتا ہے کہ میرے خیال میں ختم کرے گا۔ حمدانی صاحب ہمارے ساتھ شامل تو ہیں، لیکن شاید ان کے پاس مائک وہ نہیں ہے جس میں ان کی باتیں شامل ہو سکیں، مگر کیفیت وہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جب بیت اللہ شریف میں حاضری ہو تو یقین کیجئے کہ نہ دل قابو میں رہتا ہے، اور اب چونکہ جدائی ہے کچھ عرصے سے، ہم لوگ اس رمضان میں کوئی پاکستانی یہاں سے وہاں نہیں جا سکا، مگر انشاءاللہ تعالی یہ جدائیاں، یہ تکالیف، یہ آزمائشیں، یہ وبائیں سب ختم ہو جائیں گی، اور سر بندے کا اپنے رب سے رشتہ استوار ہو کے رہے گا۔ جی ہمارے پاس آج ایک مہمان بھی ہیں اور ہمارے کچھ اور مہمان بھی ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل ہوں گے، اور ان کی شمولیت سے یقین کیجئے کہ محفل کا رنگ اور رنگین ہو جائے گا اور تیکھا ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور اس وقفے کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے بہت ہی عمدہ مہمانوں سے، جن میں آپ کو بھی دلچسپی ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جناب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور چونکہ وبا کے دن ہیں اور باہر وائرس کا سپریڈ اتنا زیادہ ہے، خبریں دیکھ کر یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے بچا کر رکھے اور ہمارے پیاروں کو بچا کر رکھے۔ اس کے لیے بہت آسان سی کچھ احتیاط تدابیر ہیں، ان کو آپ نے اختیار کرنا ہے اور زبردستی اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی کروانا ہے۔ ایک تو ماسک، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل ٹف نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ماسک کی ہم لوگ تمام لوگ احتیاط کرتے ہیں، لیکن ہاتھ دھونا ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ جناب بالکل آپ نے یہ چیزیں نہیں بھولنی ہیں، ہاتھ آپ نے لازمی دھونے ہیں، اسپیشلی جب آپ گھر سے باہر جائیں اور گھر کے اندر آئیں۔ سینیٹائزر رکھیں ڈیٹول کا، اگر ڈیٹول کا سینیٹائزر موجود نہیں ہے تو گھر میں جناب یہ دیکھیں ڈیٹول کا ہینڈ واش، جو کہ تمام طرح کے جو جراثیم ہیں ان کو آپ کے ہاتھ سے دور بھگا دیتا ہے۔ تو اب میرے ہاتھ ہو چکے ہیں جناب ہر طرح کے جراثیم سے پاک، اور میں کچن میں جا سکتی ہوں اور ہما سے پوچھیں گے کہ ہما آج آپ کچن میں کیا بنا رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آج میں بیف اسٹرگنوف بنا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ جو پاستا ہے وہ ایولی سوس میں بنے گا۔ کافی سمپل ہے، چونکہ
और हमेशा ये होता है कि चाइनीज के साथ भी चावल स्पेशल इंग्रेडिएंट इसके लिए क्या चाहिए होगा वो आप बताइए। अच्छा जी, एक तो बीफ है, उसके साथ मशरूम्स जो होते हैं और थोड़ा सा क्रीम साथ में ऐड करेंगे, थोड़ी टमाटो सॉस ऐड करेंगे तो बड़ा अच्छा सा जो है ना ये सालन बनेगा सॉस वाला बीफ का। तो राइस वगैरह के साथ सर्व नहीं करी मैं, पास्ते के साथ सर्व करेंगे उसको, और किया भी नॉर्मली पास्ते के साथ जाता है, लेकिन पास्ते की सॉस जो है वो ना तो टमाटो सॉस होगी और ना ही क्रीमी सॉस होगी। तो रेसिपी उसकी मैं बाद में बताऊंगी, बीफ की थोड़ी सी बता देती हूँ। बिल्कुल, और इससे पहले हम ये भी बता दें हमारी ऑडियंस को कि जो कुछ बनेगा इसका जायका और खुशबू इसलिए इतनी जबरदस्त होगी क्योंकि ये कश्मीरी ऑयल में बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीफ जो है वो मैंने मैरिनेट करके स्लाइसेस में काट के रखा हुआ है मैंने। ये आपने अंडरकट लेना है और उसको आपने मस्टर्ड लगाना है, सॉल्ट एंड पेपर, लेमन जूस लगाना है, थोड़ा सा वॉस्टरशाइन सॉस लगाना है, उससे जरा टेंडर अच्छे से हो जाएगा ये। और साथ में यकीनन कश्मीर कुकिंग ऑयल मैंने मैरिनेशन में ऐड किया है और इसको अभी मैं कुक करूंगी। थोड़ा सा मैदा भी आपने साथ में ऐड करना है। ठीक है, बाकी डिटेल रेसिपी हम आपसे बाद मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे मेहमानों ने हमें अभी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब तारुफ करवा दें, क्या ख्याल है? बिल्कुल करवा देना चाहिए। वहाँ दरअसल इफ्तार की तैयारी है और खाने वाले मेरे पास बैठे हुए हैं, उनको कम से कम उम्मीद तो हो कि यहाँ से भूखे पेट नहीं जाएंगे। ख्वातीन हज़रात, हमें आज बहुत से हमारे उम्दा और आला गेस्ट ने ज्वाइन किया है। मैं जो मेरी स्टार गेस्ट हैं उनका तारुफ थोड़ी देर बाद कराऊंगा क्योंकि उसमें एक जाती तासुब और एक जाती मोहब्बत है। मोहब्बत से बड़ा कोई तासुब होता है? जिससे मोहब्बत हो उसके लिए आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट अलहदा रखते हैं। मगर दो लोग ऐसे हैं कि जो आज इस महफिल में शामिल हुए हैं, मेरी पहली मुलाकात है, मगर यकीन है कि उसके बाद और बहुत सी मुलाकातें होती रहेंगी। हमारे साथ खास तौर पे बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम से आए हुए एक पाकिस्तानी तशरीफ रखते हैं जिनकी पैदाइश भी वहीं हुई, मगर उन्होंने अपने मुल्क और अपने कल्चर और अपने म्यूजिक के साथ कोई नाता नहीं तोड़ा। जनाब आबिद इकबाल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इंग्लैंड में ही आंख खोली, परवरिश पाई, मगर हमेशा अपनी आइडेंटिटी को, और आइडेंटिटी बड़ी आला चीज है, इंग्लैंड हो या कहीं और आप रहते हो, आप एक रूटलेसनेस का, एक आईडी क्राइसिस का शिकार होते हैं, मगर वो लोग इस चीज को ओवरकम कर लेते हैं जो अपने कल्चर से खुद को जोड़े रखते हैं। अभी आबिद साहब से बात करते हैं कैसे जोड़े रखा है इन्होंने, मगर एक और साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जिनका नाम जनाब जाहिद महमूद है, जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एक ऐसी एनजीओ के, एक ऐसे इदारे के कि जो उन बच्चों का इलाज करते हैं जिन्हें खून की कमी एक खास जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर थैलेसीमिया की वजह से है। ख्वातीन हज़रात, आपको आज पता चलेगा कि थैलेसीमिया कितनी बुरी बीमारी है और जिंदगी भर के लिए ये बच्चे ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड डोनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस तरह आज ऑक्सीजन हो रही है एक एक सांस के लिए, ये बच्चे भी अपनी एक एक सांस के लिए आपके दिए हुए खून के अतियात के ऊपर इन्हिसार करते हैं। और ये लोग हैं ऐसे जो इस चीज़ का एहतमाम करते हैं। जाहिद साहब, आपके काम की कदर हर पाकिस्तानी को है, मगर मैं डॉक्टरों की हैसियत से आपको बताऊं, डॉक्टरों को खास तौर पे है। मैंने इन दोनों साहब का जिक्र कर दिया और फिर मेरी एक दोस्त आज, मैंने कहा था कि मेरी स्टार गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। स्टार गेस्ट इसलिए हैं, ऐसी मली, ऐसी गम गुसार, ऐसा उम्दा मशवरा देने वाली, और आप जानते हैं कि सदक़े की और तोहफे की एक बेहतरीन शक्ल अच्छा मशवरा है, अच्छी उम्मीद है। मैं जब भी नाउमीद हुआ मैंने सामिया खां को फोन किया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे बताइए अगर सामिया मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइए। हालांकि मैं कभी भी यूं मतलब आपने तो मुझे रुला देंगे आप। मैं सच बोल रहा हूँ। और देखिए मैं यूजुअली आपका बड़ा फन है, वरना तो लोग यूजुअली ओन करते हुए डरते हैं कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर को हमने कंसल्ट किया। मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ, सबको ऑन रिकॉर्ड रखिए, मेरी दोस्त भी है, मेरी मुशीर भी है, और ऐसी मुशीर बातदबीर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक बात आप लोगों को बताऊं, आपको इन बातों पर यकीन हो या ना हो, ये लोग सबसे पहले कहते हैं कादिर मुतलिक मेरे अल्लाह की जात है, राके में मुकद्दर वो है। हमारे पास दो चीजें हैं, सिर्फ दुआ और अनथक मेहनत, ये मुकद्दर को तब्दील कर देती है। इसमें कोई शक ही नहीं। मगर सामिया, आप लोग पता है क्या करते हैं, परेशानी के आलम में आप एक छोटा सा दिया जला देते हैं, ये कह देते हैं डॉक्टर साहब आजकल दरअसल कैप्रिकॉर्न यूरेनस के अंदर रेट्रोग्रेड है, ये 10 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। मेरे लिए 10 दिन काटने क्या मुश्किल होते हैं। एग्जैक्टली, वो एक होप होती है, और मैं तो कहती हूँ ये गाइड लाइन है डॉक्टर साहब, एब्सोल्युटली, नॉट मोर देन दैट। एब्सोल्युटली। और लेकिन आप यहाँ सब लोग जानते हैं, मैंने कभी
یہ جو میرے پاس کنسلٹ کرتا ہے وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہوتا ہے. میں نام بھی لوگوں کے نہیں بالکل، لیتی بالکل. اور آج تک یہاں پہ کوئی نہیں جانتا, لیکن آپ نے اپنا بڑا پن شو کیا یہ کہہ کے کہ آپ نے کبھی مجھ سے رابطہ صحیح, بالکل آگے بات کریں گے, لیکن اب میں اپنی توجہ کروں گا ذرا عابد اقبال صاحب سے. عابد صاحب, آپ کا ادارہ ہے جس کا نام ہے سے آرٹس. جی سے آرٹس کے تحت آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی سے آرٹ سے تقریباً 17-18 سال ہو گئے. اس سے ذریعے پہلے تو قوالی جب اتنی بہت بڑا گیپ تھا اس مارکیٹ, استاد نصرت علی خان جب فوت ہو گئے تھے, پھر کافی قوالوں کو یو کے میں متعارف کرایا. آپ جانتے ہیں کہ قوالی جو ہے یو کے میں کافی پروموٹ ہوئی اور پھر پاکستان میں اس کو مقبولیت کافی ملی. اس کے بعد جو نعت خوانی ہے تقریباً 10 سال سے اس کو پروموٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ. جو پاکستان کے اچھے اچھا سر, کون کون سے قوال ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور آپ پرفارمنس دیتے ہیں برمنگھم میں, ناٹنگھم میں, مینچسٹر میں, لنڈن میں؟ کون سے ایسے قوال ہیں یہاں سے؟ جی, جب میں نے شروعات کی استاد راحت فتح علی خان بالکل پہلے میرے کمپنی کے ذریعے گئے, ابو ٹیم ایز اے قوال گئے تھے 2003 میں. اس کے بعد فیض علی فیض اور کافی ایمان شوکت علی اور کافی نام ابھی یاد نہیں, مگر آپ کے جو نعتخوان ہیں سید زبیر مسعود, جی, حالت حسین, حالت سرور حسین نقشبندی لاہور سے, اور کافی اور ہیں. اچھا سر, آج سے تقریباً 35 سال پہلے میں انگلینڈ میں رہا کرتا تھا, میرا برمنگھم بہت جانا تھا, میں بڑا عرصہ وہاں پہ رہا. اس زمانے کے اندر اورینٹل سٹار ایک ہوتے تھے USA والے, ان کی بڑی خدمات ایسے تھیں, آپ کی واقفیت ہے ان کے ساتھ؟ جو ان کے ڈائریکٹر وہ میرے استاد ہیں ایوب صاحب ماشاء, جنہوں نے استاد نصرت علی خان کو, عزیز میاں, بہت بڑی ثقافت پروموشن کی ادھر سے, بلکہ کافی کچھ سال ہو گئے ان کو کوین سے ایوارڈ بھی ملا, وہ بھی فور کلچرل سروس جو پروموشن انہوں نے کی. اور ماشاءاللہ اگر وہ نہ ہوتے تو جو جیسے وہ ریڈیو کے پائنیئر تھے, جو BBC ریڈیو, اور اتنے کلچری کام مثلا رات دن انہوں نے محنت کی. ایک بات مجھے بتائیے, اتنے بڑے بڑے قوالوں کو بلاتے ہیں, بڑے قوالی کے کانسرٹس ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے نعت خوانوں کو بلاتے ہیں, میلاد کی محفلیں کرواتے ہیں, اچھے ہوسٹ کو کیوں نہیں بلاتے؟ اچھے ہوسٹ اصل میں جو نعت, ساری بات ہی تعارف کروانے کی, جب وہ نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ؟ جو نعت خوانی ہوتی ہے نا, اس میں جو لوکل مسجد کے مولوی ہوتے ہیں نا, وہ سیٹ نہیں دیتے. اچھا, تو کافی چلیں وہ کام ان کو دے دیجئے. قوالی کی بات کریں. قوالی کی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں میں خود کو کروں, انگلش میں تھوڑی کرنی پڑتی ہے, ضرور انشاءاللہ آپ سے واقفیت ہوگی تو ضرور آپ کو. نہیں سر, میں اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا, میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ کہیں اور کا بھلا ہو جائے گا. اچھا عابد صاحب, یہ فرمائیے کہ قوالوں کو بہت بلایا جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قوالی ایک وجد آور چیز ہے کہ بندہ سن کے آپ ایک ٹرانس میں چلے جاتے ہیں. لیکن سر ہمارے ہاں اب ہمارے لوکل اور صوفی جو سنگرز ہیں وہ بھی بڑے پاپولر ہیں, ان کی طرف رجحان تھوڑا سا کم ہو گیا سر. دیکھو جو قوالی ہے نا, وہ اس کی ٹریڈیشن ہے, ایک صوفیزم پروموٹ ہو رہی ہے, اچھے مثلا وہ شخصیت ہیں جو 600-700 سال ان کی فیملیز نے ایک عبادت کی ہے. جو صوفی میوزک ابھی آ گیا ہے, بندے نے کہا یار صوفی میوزک آ گیا, کمرشلزم ہو گئی, اس سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں, مگر وہ چیز اصل رہتی نہیں ہے. جب وہ چیز کمرشلائز ہو جاتی ہے تو وہ کافی آڈینس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے. جب استاد نصرت فتح علی گاتے تو وہ کبھی پیسے کا دھیان نہیں دیتے تھے, یہ نہیں دیتے تھے کدھر جا رہے ہیں, کون آڈینس میں ہے, بس وہ اس طریقے سے لگ جاتے ہیں ایک چیز پہ. ابھی تو کوئی بھی مثلا کوئی کانسرٹ ہوتے ہیں, بندہ کہتے ہیں یار پروموٹر کون ہے, کون سی وینیو میں ہو رہا ہے, کس چینل میں چل رہی ہے. اچھا یہ بتائیے عابد کہ جتنے بھی شہر ہیں اس وقت انگلینڈ کے تمام پاکستانیوں سے بھرے ہوئے ہیں. خواتین حضرات, اب آپ انگلینڈ جائیے تو ذرا ڈھونڈنے سے انگریز ملتا ہے, پاکستانی تو سجے کھپے ملتے رہنے. بالکل صحیح میں کہہ رہا ہوں, واقعی ساؤتھ ہال چلے جائیں وہ تو لگتا ہے انارکلی کے بازار میں آ آپ گئے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں, لیکن ولمزو روڈ چلے جائیں اور اس کے بعد آپ مینچسٹر, ڈاربی, ناٹنگھم, شیفیلڈ, کہاں چلے جائیں, روچڈیل چلے جائیں, ایسے سے, اور وہاں سے چھوڑیے آپ مطلب گلاسکو چلے جائیں. گلاسکو کے بعد میں تو ایبرڈین کئی دفعہ گیا, وہاں بھی اتنے پاکستانی مل جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یا میرے مولا کوئی ایسا خطہ 10 سے صرف انگریز ہوں, ہم بھی بڑے متعصب لوگ ہیں نا, ہمیں بھی براؤنز نہیں پسند بالکل, اللہ معاف کرے. تو اچھا سر یہ بتائیے کہ تمام شہروں میں سے سب سے اچھا رسپانس کس شہر کے آڈینس دیتے ہیں قوالی کو؟ دیکھو میں یہ نہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وہاں میری پیدائش ہوئی, مگر برمنگھم وہ گھر ہے جہاں سے چینل, جہاں سے ریکارڈ کمپنی, جہاں استاد نصرت علی خان, جہاں جتنے بھی فنکاروں نے, کیونکہ وہ ایک مکس ایک علاقہ ہے جہاں سکھ رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, انگلش رہتے ہیں, ہر قسم کے مذہب ادھر موجود ہیں. اس وجہ سے جیسے آپ کہہ رہے تھے, میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی انگلش علاقے ہوں اس طریقے سے, مگر برمنگھم ایک میلٹنگ پاٹ ہے جہاں ڈفرنٹ کلچرز اینڈ دیٹس ویئر آل دی ریلیجنز اینڈ ایتھنیسٹیز ریزائڈ, سو اٹس برمنگھم از دی بیسٹ. اچھا بھائی وہ رہتے بھی برمنگھم میں, کہتے ہیں کہ سب سے اچھے برمنگھم کے آڈینس ہے. بالکل زاہد صاحب, آپ سے بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں تفصیلاً آپ سے بات اگلی بریک میں کرنا چاہتا ہوں,
आपका यहाँ आना बगैर अहमियत के नहीं है। सर, हमें मुख्तलिफ तबका है फिक्र से लोगों को बुलाना पड़ता है ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि हर पाकिस्तानी अपनी हैसियत में अपने हमवतनों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी शनाख्त के लिए क्या कर रहा है। सर, आसान चीज़ नहीं है एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर के अंदर रह के अपने कल्चर पर प्रमोट करना। और मैं सामने आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत छोटा था जब मैं पहली दफ़ा इंग्लैंड गया। मुझे याद है कि 70s की बात है। 70s भी बहुत पुरानी बात नहीं है, मेरी उम्र से 70s का कोई हड्डी डमी चीज़ नहीं होती बिल्कुल। और यकीन कीजिए वहाँ पे पहली दफ़ा मैंने देखा कि रॉयल एल्बर्ट हॉल के अंदर मलिका तरन्नुम नूरजहां का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ और उसके अलावा लता बाई मंगेशकर का वहाँ पे हुआ। उस वक्त ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ों को समझ आ, और अंग्रेज़ नहीं जो पाकिस्तानी भी वहाँ थे, कि या मेरे मौला बरे सगीर किस चीज़ का नाम है जहाँ की खातून परफॉर्मर्स आके रॉयल एल्बर्ट हॉल जैसे एरिना के अंदर लोगों का दिल काबू कर लें। यकीन कीजिए वो कोई मामूली जगह नहीं। और उसके बाद बाय द टाइम इट वाज द 80s एंड द 90s, सर नुसरत फतेह अली खान साहब के अलावा अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब ने बहुत, मैं अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब का जिक्र इसलिए करता हूँ कि मैंने उनको पाकिस्तान में कम सुना है लेकिन सबसे ज्यादा बर्मिंघम में सुना है। सर, NEC होता था बर्मिंघम में, याद है आपको? आपका एरिना होता था वहां पे, बहुत उम्दा, और लोग इस कदर दिलचस्पी से सुनते थे इसकी कोई कहानी। और यकीन कीजिए जो काली कमीज उन्होंने अपनी महबूब की बयान कर दी है वो उतरी नहीं। और आज मेरी दोस्त ने भी काला सूट पहना हुआ है, मैं तो उनके साथ कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है। ख्वातीन हज़रात, हमारे साथ रहिए। हम आबिद इकबाल साहब को उनके लिए तमाम तर ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। खुदा ताला इनको और बेहतर पाकिस्तानी कल्चर को यूके में प्रमोट करने की तौफीक दे और अच्छे होस्ट को बुलाने की तौफीक दे। हमारे साथ हमारे साथ रहिए। एक वक्फा और उसके बाद हम दोबारा आपके साथ यही राब्ता कायम रखेंगे। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। जाहिद साहब का तारुफ इससे पहले प्रोग्राम में ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब करवा चुके हैं, तो क्या ख्याल से गुफ्तगू का भी आगाज करते हैं। जाहिद साहब, थोड़ा सा थैलेसीमिया के बारे में बताइएगा, क्या नंबर है इफेक्टेड बच्चों का पाकिस्तान में और कितनी तकलीफ से ये बीमारी है? थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने सुंदस फाउंडेशन के एज अ रिप्रेजेंटेटिव मुझे यहाँ पे बुलाया और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से तारुफ भी करवाया सुंदस फाउंडेशन का। जहाँ तक थैलेसीमिया की बात है, तकरीबन इस टाइम सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अबाउट देन 6000 पेशेंट्स जो है वो रजिस्टर्ड है जो कि थैलेसीमिया जैसे मूजी अमराज में मुब्तला है। और अगर थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो मतलब एक मौरूसी बीमारी है जो कि माँ बाप से लेके जो है बच्चा पैदा होता है। और अगर इसकी तादाद के हवाले से बात करें तो इस टाइम पाकिस्तान में जो है वो 5000 के करीब बच्चे जो है वो सालाना पैदा हो रहे हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब बच्चे जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं। बिग नंबर। और सर, जाहिद साहब आपकी बात थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए बढ़ाना चाहता हूँ कि मेरा भी हक बनता है बीइंग अ डॉक्टर कि मैं इस बहुत अहम मसले पे बात करूँ। ख्वातीन हज़रात, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जो आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है वो एबनॉर्मल होती है। उसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से बच्चों के रेड ब्लड सेल्स रोजाना हजारों की तादाद में टूटते रहते हैं और उन्हें दायमी तौर पे खून की कमी रहती है। बच्चों का शक्ल बिगड़ जाती है, ग्रोथ स्टंट हो जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, थक जाते हैं, रिटार्डेशन होती है खास किस्म की, तावक्ते कि उनको ताज़ा खून लगता रहे। एक बहुत अहम बात मैंने आपसे पूछनी है, हर साल 5000 बच्चा आपने फरमाया थैलेसीमिया से पैदा हो रहा है और आपको मैं बताऊं कि इसमें सबसे बड़ी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हाय मेरा मुंडा है खैर नल आबिद ओदा वे आप फुफी दे नाल करना है, फुफी दी तीस साजदा दे नाल फर्स्ट कजन मैरिज। मुझे बताइए सर, इनको समझाएं कि फर्स्ट कजन मैरिज कितनी ज्यादा बीमारियों के अंदर तबाही फेरती है और थैलेसीमिया में इसका क्या रोल है? सर, थैलेसीमिया में ज़्यादातर मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो कज़न मैरिजेस की वजह से ही है, लेकिन उसमें हम समटाइम ये भी जिस तरह भी आपने बताया, लेकिन हम ज़्यादा अगर इस चीज़ के ऊपर बात करें तो लोग कहते हैं कि शायद इनके खिलाफ हैं, कज़न मैरिजेस के खिलाफ हैं। लेकिन हम उसमें एक चीज़ और ईज़ आ जाती है आपके पास कि अगर आप
करनी ही है कजन मैरिज, तो उसमें ये कि टेस्ट बिफोर मैरिज जो है वो आप टेस्ट करवा सकते हैं। कोई खर्च भी नहीं है। थैलेसीमिया का जो एक छोटा सा टेस्ट होता है वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर वो करवा लेते हैं तो नस्ल को बचा के फिर रखें, बल्कि मैं महफूज कहूँगा रखें कि मेल्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए इसमें कि वो अपना टेस्ट करवाए। अगर वो पॉजिटिव नहीं है, मतलब अगर वो कैरियर नहीं है, तो फिर जहाँ मर्जी वो शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कैरियर है तो जहाँ उनकी शादी हो रही है वो लाजमी वहाँ पे वो टेस्ट करवाएं। दोनों माइनर थैलेसीमिया नहीं होना चाहिए। अगर दोनों माइनर थैलेसीमिया होंगे तो फिर आने वाले जो बच्चे हैं उनमें 25% चांसेस होते हैं कि वो थैलेसीमिया जाहिर मेजर। साहब ने जो बात आपको समझाई है कि थैलेसीमिया की दो टाइप्स हैं, थैलेसीमिया माइनर जो कि कैरियर स्टेट हो सकती है, और थैलेसीमिया मेजर जबकि एक बच्चे को दोनों पेरेंट्स की वजह से एक डिफेक्टिव जीन्स मिले। बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा ही है। हजूर वाला, मैंने थैलेसीमिया पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, जब हमें हीमेटोलॉजी पढ़ाई जाती है। अल्लाह का शुक्र है मैं अपने उस्तादों को उठ के सलाम करूं कि जिन्होंने ऐसी तवज्जो से पढ़ाया कि आज तक मुझे आज MBBS किए हुए 33 साल हो गए। तो जाहिर है पढ़ा उससे 5 साल पहले था, 38 साल हो गए। वैसे मेरी उम्र भी इतनी है, मगर क्या किया जाए। मगर सर बुनियादी तौर पर मैं एक और बात आपसे कह रहा हूँ कि अच्छी तालीम तमाम उम्र काम आती है, और एक तालीम आप यहाँ से लेके जाइए। अगर आपकी फैमिली में किसी को थैलासीमिया है तो आप अपना टेस्ट करवाएं कि क्या आप कैरियर हैं थैलासीमिया के, और अगर दोनों का टेस्ट करवाएं। अगर आपको अपनी कजन से शादी करनी बहालत मजबूरी इतनी ही ज्यादा जरूरी है कि दुनिया में बाकी और कोई लड़की नहीं रही या कोई लड़का नहीं रहा, तो फिर टेस्ट करवा के, ताकि आपका बच्चा दायमी खून की कमी का शिकार मत हो। वैसे मैं फर्स्ट कजन मैरिजेस के खिलाफ हूँ। सामिया, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तो सुन के भी परेशान हुई। मुझे सच्ची बात है इतनी वो साइंस नहीं पता कि इसके क्या क्या जो है वो इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इतनी खतरनाक बीमारी, इसके अलावा और भी हैं बीमारियां? बेशुमार और बीमारियां हैं। ये तो खून की बीमारी है ना। इस तरह इतनी और बीमारियां हैं कि जिनके अंदर आप एक कैरियर होते हैं, आप पेशेंट नहीं होते, आप अपनी फर्स्ट कजन से शादी कर लेते हैं और बच्चा आपका माजूर पैदा होता है कई वजूहात की बिना पर। और भी बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं थैलेसीमिया के अलावा भी बहुत सर, खून की बीमारी की बात करें तो मुझे ये बताइए कि जो आपका हीमोफिलिया है वो कितनी बड़ी जेनेटिक डिसऑर्डर है? सर बिल्कुल। और हीमोफिलिया वो होता है जहां पे आपका खून बंद नहीं होता, क्लॉट नहीं बनता, जमता नहीं है, और कितना बड़ा अजाब है। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग शायद थैलेसीमिया से वाकिफ नहीं हैं। आप अगर थैलेसीमिया के शिकार बच्चे को देखें, सर मेरी रूह कांप जाती है। बच्चे को मुझे टीका लगाना होना तो डॉक्टर होने के बावजूद मेरा हाथ हल्का सा लरस जाता है कि किसी का फूल सा बच्चा है। और ये बच्चे वो हैं जो कि हर दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते बाद एक पूरी बोतल खून की लगा के बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगले 3 घंटे के अंदर ये बोतल खत्म हो। ये बताएं कि बच्चे कहाँ तक ग्रो करते हैं, ये जो थैलेसीमिया के सुंदस फाउंडेशन कैसे इसमें जाहिर साहब अगर आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं? सुंदस फाउंडेशन असल में ना सिर्फ इन बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ब्लड डोनेशन जो है वो ज़रूरी है। और आजकल जैसे कोविड का ज़माना है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें ब्लड कैंप्स अरेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा दावत इस्लामी वालों को, जिन्होंने हमारा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। कल भी हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा कैंप है लाहौर में, और बल्कि पूरे साल, पिछले साल भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लड डोनेशन की। हमारे तमाम शहरों में जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेशन करवाया है यहाँ पे। अच्छा सर, एक साहब थे जो मुझे बहुत, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था और वाकई काबिल इज्जत आदमी थे। उनका गहरा ताल्लुक था सुंदस फाउंडेशन के साथ। मेरा इशारा मुन्नू भाई की तरफ है। सर उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है कि उन्होंने बहुत ताउन किया आपके साथ, आपके नाम को बहुत प्रमोट किया। सर वो चेयरमैन हमारे थे और हैं भी, और उन्हीं की वजह से आज सुंदस फाउंडेशन जो है वो इस मुकाम पे है, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी डेफिनेटली आप जिस आपने खुद का है कि उनका नाम ही काफ़ी है। जब से उन्होंने सुंदस फाउंडेशन को मतलब ऑन किया था, कि उन्होंने जब उन्होंने विजिट किया था सुंदस फाउंडेशन को एक्चुअली 99 में, तो जब उन्होंने इन बच्चों को देखा, उनकी जिस तरह अभी आपने बताया कि उनको ब्लड लगना और महीने में 2 दफ़ा लगना और फिर ब्लड, तो ये हालत उन्होंने देख के उनकी आंखों से आंसू भी जारी थे। और उन्होंने फिर अपने आप के साथ और हम सब के साथ, पूरी टीम के साथ एक वादा किया कि अब से लेके जब तक मेरी सांसें हैं इंशाल्लाह सुंदस फाउंडेशन के लिए अपने किसी की भी माँ बाप को अपने बच्चों की ये तकलीफ ना दिखाए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम अक्सर अपने नेकी सेगमेंट में बात करते हैं कि हम लोग अपनी हैसियत के मुताबिक किसी को फंड्स ट्रांसफर कर सकें या किसी की मदद कर सकें थ्रू ज़कात, लेकिन जो लोग उसकी इस्तात नहीं रखते, जो लोग किसी की माली तौर पे मदद नहीं कर सकते, अगर आप खून की एक बोतल अतिया करके किसी मुस्तहिक बच्चे को जो कि आपके खून की एहतियात का मुंतज़िर है, तो मेरे ख्याल से ये भी किसी ज़कात से कम नहीं है। ये मैं आपको बात बताऊं, आपने इतनी अहम बात की तरफ नबिया इशारा किया। हमारे एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डोनेशन ऑफ ब्लड या ऑर्गन डोनेशन अजीब व गरीब किस्म के हैं। मैं ख़वातीन हज़रात आपको बता दूं, आप हैं तो पाकिस्तानी कौम और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं आपका पर्दा हटाना भी चाहता हूं। आपके यहाँ आज तक
कॉर्निया का जो अतिया है वो श्रीलंका से आ रहा है, जहां के बुद्धिस्ट अवाम दुनिया भर में मरने के बाद अपना कॉर्निया डोनेट करते हैं। सर मैंने अभी तक किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तानी का कॉर्निया लगते नहीं देखा। नबीहा ने कहा कि हम ज़कात देते हैं और ज़कात का कितना हुलहुला होता है, सोने चांदी पे दी जा रही है, तजारत के माल पे दी जा रही है। अरे कभी सोचा है कि सेहत और जोबन और हुस्न की भी ज़कात होती है? और सबसे अच्छी शक्ल उसकी यह है कि अगर आप सेहतमंद हैं तो 6 महीने में एक दफा किसी जरूरतमंद को एक खून की बोतल दे दें, उसकी जिंदगी का मसला है वो। मगर एक आखिरी बात मैं बताता जाऊं और बुरा ना मनाइएगा, मैं बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में काम कर चुका हूं। कोई बंदा जख्मी अगर आता है तो उसके साथ 25 बंदे 7 गांव के आते हैं, हल्ला हल्ला करके डॉक्टरों पे पड़ जाते हैं कि जी हमारा अभी इलाज किया जाए, अभी इलाज किया जाए। मैंने उसका सिंपल सा तरीका ढूंढा हुआ है। और जब मैं एक यंग मेडिकल ऑफिसर रजिस्ट्रार था तो सामने मैं पता क्या करता था, मैं आते ही कहता था, मैं कहा हो 6 बोतला खून दी होते, 6 बोतला खून दी होते, ले आओ ना टेस्ट कराओ। 6 सेकंड के अंदर वो 25 दंदनाते हुए मुश्तंडे भाग जाते थे कि खून मांग लिया डॉक्टर ने। ये है हमारी कौम का हाल। ख़वातीन हज़रात, हमारी कौम की बातें करनी जरूरी है। मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें तो बहुत हो रही हैं हर जगह। वैसे जो हर जगह बातें हो रही हैं ना, उस पर यकीन कीजिए कि अपनी कब्र में जॉन एलिया साहब भी तड़प रहे हैं। उनका जिक्र मैं बाद में करूंगा। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, इसी नुक्ते पे साथ नबीहा ने रहिएगा। फटाफट मेरी ब्रेक लगा दी।